तो वीडियो के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अनीता के स्ट्रगल्स के बारे में। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है इसी को हम एक वीडियो के थ्रू जो है रिवाइज करेंगे। तो चलो एक वीडियो देखते हैं अनीता पे, और वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट। Once upon a time, there were two trees. They were Anita's trees. But if you say this to Anita, she will tell you that nothing can ever be really owned except for your dreams. This story begins at the beginning in a little village in Bihar. One day, Anita was herding her goats just like she did every day. But today, for some curious reason, Anita peeped over the school wall and decided to go to school. हमारे खानदान से लड़कियां स्कूल नहीं जाती है। मैं कभी स्कूल नहीं गए। इस गांव की अक्कू को लड़की नहीं स्कूल जाते हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है नीता, तुम स्कूल जा सकती हो, सिर्फ 5वीं तक। Anita started teaching other children what she learned in school and earning money for it too. Although not all the tutors in the village were very happy about Anita teaching children, she was so good that she took business away from them. Now she wanted to go to college. And just like always, she found a way. अनीता कहाँ जा रहा है? कहाँ जा? सब लड़की के काम ना है। लेकिन हम मर्द के साथे जा रहा है, कहाँ कोई समझ ना भैया। Anita was the first girl in her village who wanted to learn how to make honey from bees. She had something in her that the other beekeepers in her village did not. She really cared about her bees. ये मेरे मधुमक्खियाँ हैं। She knew when they were cold and she knew when they were hot. She knew when they would bite and knew when they were being lazy. She took care of them, and in return, they made her honey. Anita collected this honey, packed it and sold it in the market. And so, she could stay in school. Then one day, Anita's parents tried to talk to her about getting married. शादी कर लो, शादी की उम्र हो गई। Anita was 15 years old. She did not want to get married. खाना खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना। So, she went on a hunger strike. For 4 days, Anita pretended not to eat, while her parents went to the field. After a while, they could not bear to see Anita so sad. Anita won. Her parents promised not to talk of marriage until she is 23 years old and has completed her post-graduation. She listened to her heart and she made her dreams come true. Anita even learned to ride a motorbike. One day when her brother's friend was sick, only Anita knew how to drive a motorcycle to take him to the hospital. Anita had another secret too. She even taught her mother how to read. Anita won the community's respect, her parents' respect, and all the children in the village love her too.
पढ़ पाए, अपने पिता की लाडली काबिल वो कहलाए। Anita says, girls are free to fly like honeybees and make their lives as sweet as honey. पिता की लाडली काबिल वो कहलाए। You too can be a girl star. तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और हमने देखा कि अनीता ने जो है ट्यूशन्स के पैसे के ज़रिए से बहुत सारे मतलब पहले 2 बॉक्सेस उसने खरीदे थे जैसे कि तस्वीर में हमने देखा है, और फिर धीरे धीरे अनीता के पास बहुत सारे बॉक्सेस हो गए जिसमें उसने हनी बी को रखना शुरू किया। और हमने ये भी जाना था कि हनी बी को रखने को हम क्या कहते हैं, हम इसे एपीकल्चर कहते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि एपीकल्चर में हम क्या करते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते को जो है बीज यानी कि बीज को जो है बॉक्सेस में हम रखते हैं। तो इस तरह से बॉक्सेस में बीज को रखने को और इनसे हनी प्रोड्यूस करने को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर भी कहते हैं। तो हमने ये जाना था। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं कि अनीता ने आगे क्या किया। So that was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. तो वो सितंबर का मंथ था, अब तो दिसंबर आ चुका, अब मेरे पास बहुत सारे बीज हो गए, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो गई। तो मुझे 2 और बीज के बॉक्सेस जो हैं मधुमक्खियों को रखने के लिए बॉक्सेस जो है मुझे और ख़रीदने पड़े। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ तस्वीर में कि अनीता को और भी बॉक्सेस खरीदने पड़े आगे जाके। और कहीं ना कहीं many times the bees would sting me and my hands and face could get swollen. It would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. और कई बार जो है वो अभी भी बीज रखना सीख रही थी कि आखिर बी कीपिंग कैसे की जाती है, बी कीपिंग को हम एपीकल्चर भी कहते हैं, बी कीपिंग कैसे की जाती है वो अनीता भी सीख रही थी। और कई बार होता था कि बीज जो है अनीता को स्टिंग मतलब कि काट दिया करते थे। आप लोग को भी कभी कभी बीज ने काटा होगा तो कैसा हो जाता है, पूरा फेस और हैंड जो है सोलिन हो जाता है। जैसा कि हम तस्वीर में देख सकते हैं कि बीज जो है कहीं ना कहीं काटने पे क्या होता है कि आपके सारे जो जहाँ कहीं भी काटता है वो कहीं ना सोल है, जैसे कि तस्वीर में भी हम लोग देख सकते हैं, है कि नहीं। बीज यहाँ पे एक फिंगर में देखो स्टिंग कर रही है, अपना डंक लगा रही है, और कहीं ना कहीं काटने पे फेस जो है मुंह जो है फूल जाता है, कुछ सोल हो जाता है। तो इसी तरह से अनीता को भी हुआ करता था। और अनीता जो है कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे किसी से, क्योंकि अनीता ने ये खुद फैसला लिया था कि मैं जो है मधुमक्खी पालन किया करूँगी। तो अनीता कंप्लेन नहीं कर सकती थी और अनीता को इससे बहुत दर्द भी होता था, इट पेन अ लॉट, ठीक है, दर्द भी होता था। लेकिन उसने ही ये तय किया था कि मैं ये काम करूँगी तो वो सहने को तैयार थी। और भी हमने जाना था कि कैसे जो है बीज जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे बी कीपर्स जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे जालीदार जैसे कैप पहने रहते हैं, क्लोथ्स पहने रहते हैं। जैसे कि हम तस्वीर में भी देख सकते हैं, अनीता को भी देख सकते हो तुमने, उसने अपने फेस को ढका है, इधर भी बहुत सारी तस्वीर में। तो इस तरह का यूज़ हम करते हैं ताकि हम बीज से बच सके। बी कीपर इस तरह से इस्तेमाल किया करते हैं, इस तरह के क्लोथ्स, इस तरह के कपड़े को पहनते हैं। दे वेयर दीज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द बीज स्टिंग, ओके। और कहीं ना कहीं आगे देखते हैं कि क्या होता है कि आखिर बीज के काटने पे जो है हमें कैसे क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बीज हैज स्टंग। अब तुम्हारे एरिया में कहीं भी किसी को बी या कोई भी भेड़नी या कोई भी वास्प अगर काट ले तो तुम क्या करते हो, जिससे जनरली कोई बीज अगर आपको काट दिया तो आप क्या करते हो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बीज काटने पे क्या होता है कि तो उसके लिए बहुत कुछ यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग आइस यूज़ करते हैं, कपड़ों में बांध कर लगा लेते हैं, कुछ लोग जो है और 10-15 मिनट तक वहाँ पे रखे रखते हैं बर्फ़ को, फिर कुछ केमिकल्स लगाते हैं। और भी तरीका है बीज स्टिंग से मतलब कि करने का, जैसे कि पहले भी किया जाता है कि कहीं भी अगर आपको काटता है, कोई बी अगर काट लिया तो क्या करना है कि तुरंत जो है वहाँ से हट जाना है, ठीक है, वहाँ से तुरंत जो है हट जाना है। क्योंकि जैसे ही एक बी अगर काटी तो सारी मधुमक्खियों को ये संदेश चला जाता है कि हम पे हमला होने वाला है, तो इसलिए सारी बीज अटैक करना शुरू कर देती हैं आप पे। इसलिए जो है बी कीपर जो है जनरली जो है उनको अगर मधुमक्खियों को हटाना रहता है छत्ते से तो वो क्या करते हैं, स्मोक का इस्तेमाल करते हैं, धुएँ का इस्तेमाल करते हैं। धुएँ का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि बीज जो है बीज पे जब अटैक होता है, हमला होता है, बीज एक केमिकल कम्युनिकेशन के ज़रिए बातचीत करती है, ठीक है। और जब हम कर देते हैं तो बीज जो है एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाती है। इसलिए देखते होगे कि बी कीपर को तुमने वीडियो में भी देखा होगा कि अनीता ने कैसे धुएँ का इस्तेमाल करके बीज को हटाया था। तो इसलिए स्मोक का यूज़, धुएँ का यूज़ जो है किया जाता है, ओके। तो ये हो गया बीज स्टिंग का ट्रीटमेंट। अब तुम्हारे एरिया में कैसे यूज़ किया जाता है, तुम क्या यूज़ करते हो, ये तुम्हें जो लिखना है। फिर क्या कह रहा है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक। तुम्हें क्या करना है, अपनी नोटबुक में अपनी कॉपी में एक हनी बी का एक पिक्चर ड्राइंग बनाना है, उसका नाम लिखना है,
यू हैव टू डू दिस। आगे देखते हैं, द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन February, आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्किड्स। अब हमने लीची का पेड़ भी हमने देखा था कि लीची के पेड़ मुजफ्फरपुर जो है लीची के लिए फेमस है, और लीची के लिए फेमस, और लीची के पेड़ के फूल जो होते हैं, उसके जो फूल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसी फूल के करीब जो है हनी बीज जो आती हैं, ओके, हनी बीज आती हैं और उन फूलों का नेक्टर पीने, उन फूलों का रस पीने, पराग पीने आती है, और उसी नेक्टर से क्या करती हैं, हनी बीज जो है वो क्या बनाती हैं, वो हनी बनाती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हम जानते हैं। और कहीं ना कहीं अनीता जो है सारी जो उसके बीज जो जितने भी बॉक्सेस हैं उनको लीची के पेड़ों के नीचे, लीची के बागान, ऑर्किड्स मतलब लीची का बगीचा के नीचे उन सारे बीज को रख दिया। जैसे कि हम तस्वीर में देख सकते हैं कि अनीता ने अपने सारे लीची के पेड़ों के नीचे अपने सारे बी बॉक्सेस को उसने रख दिए हैं, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं अब क्या कहने जाते हैं। और भी हम जानते हैं कि आखिर बीज आखिर फ्लावर्स पे जाने से उसे क्या क्या बेनिफिट होता है। एक तो ये होता है कि बीज जो है इसे सीड्स बनने में मदद मिलती है। जब सीड्स बनते हैं तो फ्रूट्स बनते हैं, ओके। और बीज के एक फूल से दूसरे फूल पे जाने से ये भी होता है पॉलिनेशन होता है, जो कि आगे के क्लासेस में तुम लोग जानोगे भी, ओके। हम एक वीडियो भी देखते हैं, चलो। अब एक क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है तुमसे कि आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। हर बॉक्स से अनीता को 12 किलोग्राम जो है हनी मिलता है, 12 किलो हनी मिलता है। तब पूछा जा रहा है कि ये हनी जो है वो मार्केट में बेच देती है, सोल्ड कर देती है। तो ये उसकी पहली कमाई थी, पहली अर्निंग थे उसके 20 से, मधुमक्खी से। अब उसके पास 20 बॉक्सेस, तो 20 बॉक्सेस से कितनी कमाई होगी? व्हाट विल द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता's 20 बॉक्सेस? तो अनीता के टोटल 20 बॉक्सेस का कितना दाम होगा? एक बॉक्स का दाम कितना था, रिमेंबर, याद करो, एक बॉक्स का दाम था 2000 रुपये। तो 20 बॉक्स का 2000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या अनीता के पास कितने बॉक्सेस थे, ओके। हमने प्रीवियस पार्ट 1 में हमने देखा था अनीता ने एक बॉक्स को 2000 रुपये में खरीदा था। 20 बॉक्स तो कितने दाम हो जाएंगे? यू हैव टू राइट इट हियर। अब आगे देखते हैं हम लोग। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 kilometers away. When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. हर दिन मैं साइकिल से जो है कॉलेज जाती हूँ। देख सकते हैं इसका तस्वीर में कि हर दिन अनीता साइकिल से कॉलेज जाती है, जो कि 5 किलोमीटर दूर है। और जब भी वो कॉलेज जाती है उसकी मम्मी जो है हनी बीज के लिए सिरप जो होता है हनी बी का एक फूड होता है, ठीक है, मीठा जैसा, वो बनाती है उसकी मम्मी। और उसके पापा क्या करते हैं, उन सारे हनी बीज का केयर, लुक आफ्टर मतलब केयर, ख्याल रखते हैं, ओके। नाउ यू ऑल्सो नो अबाउट अनीता। अब तुम अनीता के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हो। अनीता के बारे में तुमने एक वीडियो भी देखा है गर्ल्स स्टार का, तो काफ़ी कुछ जान चुके हो अब तुम अनीता के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। अनीता को उसके गाँव के जो आसपास के गाँव थे वो लोग भी जान चुके थे अनीता कौन है, ओके। और अनीता जो है हर गांव की मीटिंग में जाती थी, लोगों से बातें किया करती थी और बताती थी कि आखिर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है तब पढ़ना। कभी कभी अनीता को लोग मजाक उड़ाया भी करते थे, जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा था अनीता का मजाक उड़ाया कि अनीता जो एक लड़की होकर इतना कुछ करती है। लेकिन अनीता जानती थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अनीता वही करती थी जो वो करना चाहती थी वही कर रही थी, इसलिए अनीता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और अनीता कहीं ना कहीं होल सेलर बनना चाहती थी ताकि वो गाँव के हर लोगों को जो है हनी का जो एक मार्केट में बेचने का जो एक सही दाम मिलता है वो दिला सके। अब होल सेलर क्या होता है, यहाँ पे होल सेलर का वर्ड है, होल सेलर कहते हैं थोक विक्रेता। थोक विक्रेता मतलब कि जो सबसे बड़ा दुकान होता है वो छोटी छोटी दुकानों को बेचता है, ओके। तो अनीता होल सेलर बनना चाहती थी, तो ये बनना चाहती थी। आगे देखते हैं हम क्या क्वेश्चन हैं, लेट अस सी। Anita and others in her village get ₹35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your town? अनीता और उसके गांव के लोगों को 1 किलो हनी के लिए 35 रुपये मिलते थे। तुम्हारे शहर में 1 किलो हनी का दाम कितना है, ये तुम्हें लिखना है और लिखना है इसको यहाँ पे, ओके, फाइंड आउट करना है। What are the different colors of honey that you have seen? तुमने कितने तरह के हनी को देखा है, कितने कलर्स के हनी को देखा? You have to write it here. Is honey used in your house? For what it is? तुम्हारे घर में क्या हनी का यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है, तो ये आपको बताना है आपको। तो मेरे घर में भी काफ़ी कुछ हनी का यूज़ होता है, ओके। वी ऑल नो इट कि द बीज गिव हनी। तो आखिर हनी का क्या क्या यूज़ होता है, वी हैव टू नो इट। देयर आर मेनी वेज, हनी का बहुत सारे यूज़ है। देखो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी कि हनी बीज का इस्तेमाल मेमोरी या दर्श मजबूत करने में, घाव को भरने में, इंसोम्निया है, आपको नींद नहीं आती उसके लिए, खांसी है उसमें,
आपको एलर्जी है उसमें बहुत सारी चीज़ों में हनी का इस्तेमाल होता है। कहीं ना कहीं 20 हमारे फ्रेंड्स हैं और भी यूजेस है, देख सकते हैं। ये सोराइसिस को भी ट्रीट करता है, बहुत सारे घाव जख्मों को भी भरता है, जैसे कि तुम पढ़ सकते हो इसमें। ओके, पॉज करके। ओके।